ಹಾಕಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿನ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ರಕ್ತಪಾತ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಿನ ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ರಕ್ತಪಾತ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ಒಂದೇ ದೇವರ ದಾಸರು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು. ಒಂದೇ ದೇವರ ದಾಸರು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ವೇದ ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಹಿಂಸೆ ಸಾರದು, ಹಿಂಸೆ ಸಾರದು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟರೆ ಕಚಟ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಗಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂದು ಬಿಕಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳಲು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟರೆ ಕಚಟ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಗಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂದು ಬಿಕಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕುರಾನ್ ಕಥೆಯು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದುವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲು, ಅದುವೇ ಅಡಿಗಲ್ಲು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರಲಿ. ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಿ. ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ, ನಾವು ಮನುಜರು, ನಾವು ಮನುಜರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ, ನಾವು ಮನುಜರು, ನಾವು ಮನುಜರು. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡ್ಡ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹುವೆವು ನಾವು ವಿಲಯ ವೃದ್ಧರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ, ನಾವು ಮನುಜರು, ನಾವು ಮನುಜರು. ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸ ಸಮತೆಯ ಸಮರಸವನ್ನು ಸಮೇವೆವು ನಾವು ನವವಿಧಾತರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ, ನಾವು ಮನುಜರು, ನಾವು ಮನುಜರು. ತೆರೆಬಾಗಿಲ ಹೊರನೋಟದ ಹೊರಸುರಿನ ಹಂದರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ ಸ್ವಾಗತವು ನಿರಂತರ. ಚಿರವುದಾರ ಸುಂದರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ, ನಾವು ಮನುಜರು, ನಾವು ಮನುಜರು. ಬನ್ನೀರಣ್ಣ ಬನ್ನೀರೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ತಮ್ಮರು. ನೆಡೆಯ ನುಡಿಯ ನೂರು ಗೋಡೆ ಗೋಡೆ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ ನಾವು ಮನುಜರು ಜಾತಿ ಮತದ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬನ್ನೀರಿ ಬಯಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಉಣುಕುವ ಶಾಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ಕುಲ ನಾವು ಮನುಜರು ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಎಂದುಕೊನೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಒಂದು ಕಳೆವ ಕೊನೆ ಅಪಗಿತ ಬರದಿ ಎಂದುಕೊನೆ ಹಾಗೆಂದುಕೊನೆ ಎಂದುಕೊನೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಒಂದು ಕಳೆವ ಕೊನೆ ಅಪಗಿತ ಬರದಿ ಈ ಕೊನೆ ಕೊಬ್ಬಿಗೆ ಇಬಗೆ ಮುಪ್ಪಿಗೆ ಬರದ ಕೊನೆ ಇದಕ್ಕಿರದ ಕೊನೆ ಎಂದು ಕೊನೆ ಹಾಗೆಂದುಕೊನೆ ಎದೆಯೆದೆಗೂ ನಡುವಿಗೆ ಹಿರಿದಡಲು ಮುಟ್ಟಲಾರವೇನೋ ಸೇತುವೆ ಕತ್ತಲಾರವೇನೋ ನಡುವಿನ ತೆರೆಗಳ ಮೊರೆಹರ ಮಾನವ ಜೀವಗಾನವೇನು ಅದೇವನ ದಿವ್ಯ ಗಾನವೇನು ಎಂದು ಕೊನೆ ಎಂದುಕೊನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಳೆವರೆ ಅಪಗಿತ ಬರದಿ ಕೊನೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಂಬುವ ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬವು ಕಪ್ಪದ ಕಾದಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮುಸುಳುವ ಮೊಳಗಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಮೊಳೆಯದೆ ನಮ್ಮಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾರದೆ ನಮ್ಮಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ समाप्त करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में एक ऐसी धारणा पैदा करने की कोशिश हो रही है, आप और हम, मैं और वो, अस एंड दे, ये नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि वो अलग है, हम अलग हैं, ये कुछ और है, वो कुछ और है। ये जो धारणा है ये समाज को हमको बांटने वाली है। इसका जवाब ये है कि हम वाली धारणा, हम सब एक हैं, ये देश हमारा है, हम सब भारतीय हैं, ये पूरा समाज हमारा है। इसको हम अलग अलग करके न देखें। इस समाज में जो कुछ गलत होगा वो सबके लिए नुकसानदेह होगा, समाज में जो अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा होगा। इसलिए हम और वो की जो धारणा है उसके मुकाबले में हम की धारणा को, हम सब एक हैं, इस धारणा को ज्यादा प्रबल करने की जरूरत है। लोग अदराइजेशन, एक दूसरे को पराया करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनों को पराया बनाने की कोशिश हो रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम परायों को भी अपना बनाने की कोशिश करें। अदराइजेशन ये अलग है, वो अलग है। इस अदराइजेशन का मुकाबला, इस अदराइजेशन का को रोकने की कोशिश हम जिस चीज से कर सकते हैं वो ब्रदराइजेशन है। अदराइजेशन को हम ब्रदराइजेशन से रोक सकते हैं। इस अदराइजेशन के मुकाबले में हमें ब्रदराइजेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हर क्षेत्र में हुआ है, उसका सबसे ज्यादा असर हम अपनी राजनीति पर देखते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारी राजनीति अपॉर्चुनिस्टिक, अवसरवादिता और अब समाज को बांटने के रास्ते वाली राजनीति, आपस में घृणा फैलाने वाली, ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब का दायित्व है कि हम घृणा पर और समाज को बांटने वाली राजनीति को आगे न बढ़ने दें। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा ताकतवर आम लोगों को होना चाहिए और आम लोग अगर ये तय कर लें कि हम घृणा की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम धर्म का दुरुपयोग नहीं होने देंगे राजनीति में, हम समाज को बांटने नहीं देंगे, हम अपराधी और गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को हम चुनकर नहीं भेजेंगे। ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजनीति को भी
सद्भावना और चरित्र के साथ आगे बढ़ाना ये हमारे लिए जरूरी है। ऐसे लोग राजनीति में आए, ऐसे लोग हमारे प्रतिनिधि बने जिनका चरित्र अच्छा हो, जो आपस में प्रेम और भाईचारा चाहते हो और जो सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हो। ये हम सबका दायित्व है कि हम घृणा और बांटने की जो कोशिशें कुछ लोग करते हैं, हमारे ही भाई हैं, वो नासमझ है, नादान है, उनको समझाना और ऐसी राजनीति के ऐसी कोशिशों को रोकने की कोशिश करना वो हम सबकी जिम्मेदारी है। और आपसी मोहब्बत ये इंसान की नेचर है, इंसान की प्रकृति प्रेम और मोहब्बत है। नफरत और घृणा इंसान की प्रकृति नहीं है। इसलिए इंसान नफरत और गुस्से की हालत में ज्यादा देर नहीं रह सकता और नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं किया जा सकता, घृणा का मुकाबला घृणा से नहीं किया जा सकता। नफरत को रोका जा सकता है तो मोहब्बत से रोका जा सकता है, प्रेम से रोका जा सकता है। नफरत का जवाब प्रेम से देना होगा, नफरत के तूफान को प्रेम से रोकना पड़ेगा। और आप हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस प्रेम को जितना ज्यादा मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम इस देश और समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और नफरत को रोक पाएंगे। हजारों वर्षों से साथ रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जानते, पूरी तरह नहीं समझते। जमात इस्लामी हिंद आप जैसे लोगों के साथ मिलकर ये कोशिश और ये प्रयास कर रही है कि अलग अलग धर्म के लोगों और आस्थाओं के लोगों के बीच एक सामूहिक सामंजस्य पैदा हो, एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो, आपस में संवाद और डायलॉग हो, एक दूसरे की बातों को जानने और समझने के ज्यादा से ज्यादा अवसर हो। हम एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की आस्थाओं को और एक दूसरे के धर्म में जो संवेदनशील और सेंसिटिव इश्यूज हैं उनको समझने का हम प्रयास करें। हम समझते हैं कि एक दूसरे से सीधे हमारा परिचय होना चाहिए। आज हमारा एक दूसरे से परिचय मीडिया के माध्यम से होता है या फिर हमारे राजनेता हमारा एक दूसरे से गलत परिचय कराते हैं। हम सबको एक साथ मिलकर अपना खुद से एक दूसरे से परिचय और संवाद करने की आज आवश्यकता है। इसीलिए जमात इस्लामी हिंद पूरे देश में इस तरह के सद्भावना मंच पिछले कई सालों से कायम करने और स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अभी देश में करीब 1000 से ज्यादा ऐसे सद्भावना मंच पूरे देश में चलाए जा रहे हैं और हम समझते हैं कि और इनकी संख्या को और कई गुना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत और आवश्यकता है। आज जब हम लोगों से बात करते हैं या मीडिया में खबरें पढ़ते हैं तो बहुत से लोग ये मानते हैं, समझते हैं और बहुत से लोग इस गलतफहमी को लोगों में फैला भी रहे हैं कि आपस में जो आज नफरत बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, हिंसा और वायलेंस जो हो रहा है, आपस में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, उसका कारण धर्म है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारा मानना यह है धर्म के कारण हिंसा नहीं हो रही है। धर्म इस हिंसा का और नफरत का कारण नहीं है, बल्कि धर्म का जो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, धर्म का जो लोग मिसयूज कर रहे हैं, धर्म का जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जो धर्म का चोला ओढ़कर धर्म के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ये नफरत और ये दूरियां बढ़ रही है। इसलिए धर्म गुरु और धर्म के मानने वाले लोगों का ये दायित्व है कि वो ये बताएं लोगों को कि हिंसा और नफरत का कारण धर्म नहीं है, बल्कि धर्म से दूरी और धर्म का दुरुपयोग है। हम सबका पैदा करने वाला वो ईश्वर एक ईश्वर है और सारी मानव जाति, पूरी ह्यूमन सोसाइटी एक ही माँ बाप की संतान है। हम सबके माँ बाप एक ही हैं,
हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं वो सब एक माँ बाप की संतान है। इससे बड़ा करीबी रिश्ता और क्या हो सकता है। ईश्वर ने जो मार्गदर्शन अपने अपने जमाने में, हर जमाने में अपने ईश दूतों और संदेशताओं के माध्यम से दिया, वो इंसानों को जोड़ने वाला था, इंसानों के बीच प्रेम और मोहब्बत पैदा करने वाला, सारे इंसानों को एक ईश्वर के आगे झुकने का संदेश देने वाला था। धर्म इंसानों को आपस में जोड़ता है। जो चीज इंसानों को आपस में बांटती है वो धर्म नहीं हो सकती। जो इंसानों को छोटा और बड़ा बनाए वो धर्म नहीं हो सकता। जो कुछ इंसानों को बड़ा समझे, कुछ को नीचा समझे, कुछ को अछूत समझे, ऐसा धर्म नहीं हो सकता। हर इंसान, हर मानव की गरिमा, उसकी डिग्निटी, वो उस ईश्वर ने उसकी हिफाजत का हमको आदेश दिया है। हर मानव की डिग्निटी और उसकी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए। जोड़ने वाला ही धर्म है, आपस में मिलाने वाला ही धर्म है, बांटने वाला धर्म नहीं। ये बात हम सबको समझनी है और लोगों को भी समझानी है। जो बांट रहे हैं वो सही माने में धार्मिक लोग नहीं। हम सब चाहते हैं कि समाज में शांति हो, समाज में प्रेम हो, समाज में भाईचारा हो। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। शांति की स्थापना हम सब का उद्देश्य है, लेकिन शांति की स्थापना सही माने में, स्थायी शांति उसी वक्त हो सकती है जब समाज में न्याय स्थापित हो, समाज में जब जस्टिस आएगा हर एक को। एक और बात जो मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये, हम बहुत सारे अलग अलग आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग एक साथ बैठे हैं। हमारी विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं। ज्यादातर मुद्दों पर हमारी राय एक जैसी और एक समान है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारी रायों में फर्क भी हो सकता है। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ मुद्दों पर हमारी आपस में असहमति भी हो सकती है, लेकिन हमें इस असहमति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। किसी की आस्था हमसे अलग है, आप अपनी आस्था पर रहें, अपनी आस्था के अनुसार आचरण करें, लेकिन किसी दूसरे की आस्था की स्वतंत्रता का हम सम्मान करें। तो अगर हम असहमति के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करने का कल्चर पैदा करेंगे, एक दूसरे का आदर करने का, चाहे हमारे किस मुद्दे पर आपस में राय अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करें, हम एक दूसरे का आदर करें और आपस में संवाद को जारी रखें। मैं समझता हूं एक दूसरे का सम्मान करना ये इस सद्भावना को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक और बहुत जरूरी है। ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। एक कड़वी हकीकत जो हम सबके सामने है कि हमने 75 साल में हर मैदान में तरक्की की है। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हम स्पेस में चले गए, हमने एटॉमिक पावर डेवलप कर लिया, हम आईटी और कंप्यूटर में बहुत आगे हो गए, एग्रीकल्चर में हमने बहुत तरक्की की है। इस पर हमें खुशी और फक्र है कि हमारे देश ने इन तमाम मैदानों में खूब तरक्की की है। लेकिन ईमानदारी से जायजा लेते हैं तो मालूम होता है कि इन 75 सालों में हमारा नैतिक पतन हुआ है, हमारी मॉरलिटी और हमारा चरित्र और किरदार गिरा है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते, हमारा देश दुनिया की लीडरशिप नहीं कर सकता जब तक कि
साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा कैरेक्टर और हमारा चरित्र और हमारी मॉरलिटी औरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा मजबूत न हो। धर्म के मानने वाले और धर्म गुरु और समाज सेवा करने वाले लोगों का यह दायित्व है कि वो समाज में नैतिक पतन को रोकें, समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें और समाज में चरित्र पर आधारित समाज हम बनाने की कोशिश करें, तो ही हमारा देश मजबूत हो सकता है और दुनिया को लीड कर सकता है। हम सब चाहते हैं कि समाज में शांति हो, समाज में प्रेम हो, समाज में भाईचारा हो, हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। शांति की स्थापना हम सबका उद्देश्य है, लेकिन शांति की स्थापना सही मायने में स्थायी शांति उसी वक्त हो सकती है जब समाज में न्याय स्थापित हो, समाज में जब जस्टिस आएगा, हर एक को उसका सही स्थान मिलेगा, किसी का अधिकार कम नहीं किया जाएगा, किसी को सताया नहीं जाएगा, किसी को छोटा नहीं समझा जाएगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा, सबकी गरिमा की रक्षा और सबका सम्मान होगा। ये न्याय जब स्थापित होगा तो शांति स्थापित होगी। इसलिए शांति की, स्थायी शांति की स्थापना के लिए जरूरी है कि हम समाज में न्याय की स्थापना करें और जहां कहीं अन्याय देखें, जहां कहीं शोषण देखें, जहां कहीं अत्याचार देखें, वहां हम सबको एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उस पीड़ित का साथ देना चाहिए, तभी समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। सद्भावना की स्थापना के लिए जरूरी है कि हम समाज से अन्याय की जितने प्रकार हो सकते हैं, जितनी किस्में हो सकती हैं, उसको हम खत्म करने की कोशिश करें और हमेशा हम कमजोर के साथ और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होने की हम कोशिश करें। हमारा देश, जैसा कि मैंने कहा, विविधताओं का देश है और जब हमने आजादी पाई 1947 में, 1947 में, 1950 में हमने एक संविधान सबने मिलकर बनाया और उस संविधान में जिन मूल्यों को रखा गया, जिन वैल्यूज को रखा गया, वो वैल्यूज ही इस भारत की असल बुनियाद है। अगर वो वैल्यूज मजबूत होंगी तो भारत मजबूत होगा, हम सब तरक्की करेंगे। और वो वैल्यूज 4 वैल्यूज हैं। पहली बात है समानता, इक्वालिटी, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी के साथ भेदभाव न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न जेंडर के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। न संख्या के आधार पर कोई किसी संख्या में कम हो या ज्यादा हो, सब समान है। ये पहला मूल्य है। दूसरा मूल्य न्याय है, सबके साथ न्याय होना चाहिए। और तीसरा मूल्य हमारी आजादी है, हमारी फ्रीडम है कि हम में से हर एक को, हमारा संविधान ये कहता है कि हम अपनी पसंद का धर्म अपना सकते हैं, अपनी पसंद की आस्था अपना सकते हैं, अपनी विचारधारा, पसंद की विचारधारा को अपनाने की हम सबको स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता सबकी बाकी रहनी चाहिए और इस स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। और चौथी और आखिरी जो चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेटर्निटी, आपसी प्रेम और भाईचारा। ये अगर मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा और तरक्की करेगा। हम अपने देश को तरक्की की राहों पर आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें इन संविधान के इन 4 मूल्यों, समानता, न्याय, आजादी, स्वतंत्रता और आपसी प्रेम और भाईचारा, इन 4 मूल्यों को हमें मजबूत करना होगा। और सद्भावना मंच इन मूल्यों को, और खास तौर से जो आखिरी मूल्य है भाईचारे का, उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। एक और बात जो मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये, हम बहुत सारे अलग अलग आस्थाओं में विश्वास रखने वाले लोग एक साथ बैठे हैं। हमारी
विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं। ज्यादातर मुद्दों पर हमारी राय एक जैसी और एक समान है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमारी रायों में फर्क भी हो सकता है, हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, कुछ मुद्दों पर हमारी आपस में असहमति भी हो सकती है, लेकिन हमें इस असहमति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। किसी की आस्था हमसे अलग है, आप अपनी आस्था पर रहें, अपनी आस्था के अनुसार आचरण करें, लेकिन किसी दूसरे की आस्था की स्वतंत्रता का हम सम्मान करें। तो अगर हम असहमति के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करने का कल्चर पैदा करेंगे, एक दूसरे का आदर करने का, चाहे हमारे 30 मुद्दों पर आपस में राय अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे का सम्मान करें हम एक। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और आयोजकों का भी। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 3 दिनों से कर्नाटक के अलग अलग शहरों में जाने का मुझे मौका मिल रहा है। कुल 6 दिन का कर्नाटका का कार्यक्रम है। बेंगलोर, मैसूर और हासन, और आज आपके यहाँ शिमोगा, सब जगह इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कर्नाटक राज्य में आप जैसे बहुत प्रबुद्ध लोग, शांति और सद्भाव के लिए काम करने वाले लोग, आपस में मिलजुल कर इस देश को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए चिंता करने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं समझता हूँ कि हमारे देश का भविष्य और हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बहुत ही रोशन है। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ हिंद जो एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक धार्मिक संगठन है और देश में मूल्यों पर आधारित, शांति और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने का उद्देश्य रखता है और ईश्वरीय मार्गदर्शन के आधार पर इस देश में शांति और सद्भाव और न्याय और शांति की स्थापना के लिए कोशिश कर रहा है। हम ये समझते हैं कि हमारा ये देश जो विविधताओं का देश है, डाइवर्सिटीज का देश है, इसमें अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति और कल्चर है। ये विविधताएं, ये डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत है। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग आस्थाएं हैं, इन सब के बावजूद हम एक हैं और इस एकता का परिचय आज से नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों वर्षों से हम दे रहे हैं। हमने इस देश को सबने मिलजुल कर बनाया है, हमने इस देश को सबने मिलजुल कर आजाद कराया है। ये हम सबका देश है और इस देश को बनाने में, इस देश को आजाद कराने में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर विचारधारा के लोग, महिला और पुरुष, सबने इसमें योगदान किया है और सबने इसमें अपनी कुर्बानियां और अपना बलिदान दिया है। और सब अपनी अपनी आस्थाओं पर रहते हुए, सब अपने अपने धर्म पर रहते हुए, हमारी आस्थाएं और हमारे धर्म हमारी एकता के बीच कभी आड़े नहीं आए, बल्कि उससे हमारी एकता और मजबूत हुई। ನಮ್ಮ ದೇಶದ
आप सबका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सुंदर कार्यक्रम का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। आप सबका भी और आयोजकों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ और उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಕೂದಲು ನೆರೆದಿರುವಂಥವೇ ಬಂದಿರೋದು. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಯಾವ ಯುವಕರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಭೆ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಭೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಥರ ದುಃಖನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನರ್ಹರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಅತಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ಎದ್ದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ. ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಬಟ್ ಇಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮಹಿಳೆಯರೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ದೇಸಾಯಿ ಮೇಡಮ್. ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ ಭಾವಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ GSS ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಅರಳಿತು ಹೇಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಮೋಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗಡಿಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದೂಕಿನ ಶಬ್ದ ನಿಂತಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟಾಗೋರ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲಿದೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೀಪ ಇರತಂತೆ. ನಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀ ಚಿಂತೆ ಬೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದಿನ ಸದ್ಭಾವನಾ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಸದ್ಭಾವನಾ ಹಣತೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಸ್ಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ಓದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಜಹಬ್ ನಹೀ ಸಿಕ್ಕಾತ ಆಪಸ್ ಮೇ ಬೈರ್ ರಖನಾ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಪದ, ಮಜಹಬ್ ನಹೀ ಸಿಕ್ಕಾತ ಆಪಸ್ ಮೇ ಬೈರ್ ರಖನಾ. ಹಾಗೆ ನನಗೊಂದು ಶೈಲಿ ನೆನಪು ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ हे अल्लाह हे परवरदिगार, हे अल्लाह हे परवरदिगार, तेरा दरबार में हमारा भी एक अर्ज मंजूर करो, तेरे दरबार में हमारा भी एक अर्ज मंजूर करो. जो मजहब के नाम से दिल को तोड़ते हैं उनको पैदा मत करो, उनको पैदा. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿಂದ ಒಡಕುಟ್ಟು ಮಾಡಂತವ್ರು ಬೇಡ. ಕಸವರಂ ನೆರೆ ಸೈನ್ಸನಾರ್ಪಡೆ ಕಸವರಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಆಸ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಧರ್ಮವನ್ನ, ಪರ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಇವತ್ತು 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೂಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ರಿಂದ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾಕೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. इतनी कोशिशें होने के बावजूद भी लोग धर्म के नाम पर